کامران بتائے گا، وزیر اعظم کا خطاب اختتامی خطاب ہی تھا، سیشن ختم ہو چکا ہے کل تک کے لیے؟ جی بالکل، سیشن ایڈجرن ہو گیا ہے اور وزیر اعظم نے اس میں جو 27ویں آئینی ترمیم جو ہے 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی، اس پر انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے اسمبلی کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بہتر ریفارمز کے لیے یہ ترمیم جو ہے وہ اپنے آئین میں شامل کی ہیں۔ انہوں نے جو ملکی حالات چل رہے ہیں اس وقت، جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا بھی شکریہ ادا کیا اور یہ بتایا کہ یحییٰ آفریدی ہی اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے اور وہی جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوں گے، وہی سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی چیئرمین ہوں گے، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی سربراہی بھی انہی کے پاس ہی رہے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم اور NFC سے وارڈ میں مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی، اس لیے ابتدائی جو مسودہ تھا اس میں اس سے متعلق جو ترامیم تھیں، یعنی 18ویں ترمیم سے متعلق جو ترامیم تھیں ان کو پھر ڈراپ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کل جو اسلام آباد میں واقع ہوا اور اس سے ایک دن پہلے جو وانا کیڈٹ کالج میں جو واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری سیکورٹی فورسز نے نہایت بہادری کے ساتھ وانا کیڈٹ کالج پہ جو حملہ کیا گیا اس میں دشمن کو اس حملے کو ناکام بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ایسے حملوں میں افغانستان بھی استعمال ہو رہا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے تھے اور افغانستان جب پاکستان پر حملہ کر رہا تھا تو اس وقت افغانستان کے وزیر خارجہ جو تھے وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس میں پوری قوم کو یکجہتی دکھانے کی ضرورت ہے، اپنی سیکورٹی فورسز کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ اس قسم کی جو چیلنجز ہیں، جو دہشت گردی کے چیلنجز ہیں، TTP سے نمٹنے کا جو چیلنج ہے، اس چیلنج کو پورا کیا جا سکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو لگام دے، اس لیے کہ یہ شواہد موجود ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور افغانستان میں دہشت گرد جو ہیں وہ ان کا مرکز بھی ہیں، وہاں پر ان کی ہائیڈ آؤٹس اور بھی ہیں۔ انہوں نے کامیاب آپریشن پر افواج پاکستان کو سلام پیش کیا، ان کی جو جرت و بہادری ہے اس کو سراہا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے یہ وانا کیڈٹ کالج میں جو حملہ تھا اس کو جس طریقے سے ناکام بنایا گیا، اور جس طریقے سے وہاں پر جو اسٹوڈنٹس تھے جن کی تعداد 500 سے زیادہ تھی ان کو بغیر کسی نقصان کے ان کو جو ہے وہ بازیاب کرایا گیا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری سیکورٹی فورسز کی۔ ان کا جو پروفیشنلزم ہے، ان کی جو جرت و بہادری ہے، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے اس حملے کو ناکام بنانا۔ انہوں نے کہا جو چیز وفاق اور پاکستان کو مضبوط کرتی ہے میں اس کا ساتھ دوں گا، اور انہوں نے کہا کہ جی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کہا کہ یہ اچھا منصوبہ ہے لیکن قومی یکجہتی کے خلاف تھا، اس وجہ سے اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جو بھی قربانیاں ہیں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور دہشت گردی کو ہماری سیکورٹی فورسز اپنی قوم کے ساتھ مل کے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، اور یہ جو آج دہشت گردی کی جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ان کا سدباب کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کامران جو خاص طور پہ وزیر اعظم نے بات کی وہ افغان طالبان رجیم کو ایک بار مذاکرات کی دعوت دی ہے انہوں نے، اور یقیناً یہ بہت اہم بات ہے کہ جہاں افغانستان کے ساتھ اس وقت پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں وہاں ایک مرتبہ پھر سے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کی دعوت دی ہے وزیر اعظم نے۔ شہریار خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہریار، وزیر اعظم نے اپنی تقریب میں بہت سے ابہام دور کر دیے، اگر جوڈیشری کے حوالے سے کہا جائے تو وہ بھی، اگر جو باقی جماعتوں کے ساتھ تعلقات ہیں خاص طور پر بلاول بھٹو کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، ہماری سوچ ایک ہے، ان سے مزید جو ان کے معاملات ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، بہت سارے ابہام انہوں نے دور کر دیے۔ جی بالکل، وزیر اعظم نے آج بڑی جو ہے تقریر اپنی میں تمام جو نکات تھے ان کو کور کیا، اور انہوں نے بڑے ہی واضح انداز میں ایک تو افغانستان کو بھی پیغام دیا، دوبارہ انہوں نے کہا کہ ان کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اور بلاول ایک ہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کالا باغ ڈیم جو ایک شاندار منصوبہ ہوگا مگر اس سے اگر وفاق کو نقصان پہنچے تو یہ ہمیں منظور نہیں، ایک نہیں 100 کالا باغ ڈیم بھی ہو تو وفاق کو نقصان پہنچا تو ہمیں یہ قبول نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے افواج پاکستان کی تعریف کی کہ انہوں نے مارکہ حق میں بھی بڑی قربانیاں دی، دہشت گردی کے خلاف بھی ان کی جانیں جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ انہوں نے بلاول بھٹو سمیت
तमाम लोगों को कहा कि उन सबके साथ वो बैठने के लिए तैयार हैं और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान है तो हम हैं, हम बैठकर बात करेंगे और बैठकर हर चीज को तय करेंगे। इस वक्त कस्टम ड्यूटी का कोई जिक्र आइन में नहीं है मगर एक रिवायती तरीके से चल रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले हम जिस मुल्क में जाते थे वहां के सरबराह 5 कदम बढ़कर आगे वेलकम नहीं करते थे, आज हम जहां जाते हैं वहां के सरबराह 5 कदम आगे बढ़कर वेलकम करते हैं। तो बड़ा हालात तब्दील हो गए हैं। 1.25 साल पहले गए तो रिवायती इस्तकबाल हुआ था मगर अब एक पुरजोश इस्तकबाल हुआ। इसी तरह उन्होंने तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। उसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि वो एक नेक नाम चीफ जस्टिस है और एक अच्छी शोहरत के हामिल जज है। और उन्होंने कहा कि इख्तिलाफ राय सबका हक है मगर गालम गलोच दुरुस्त नहीं है। हमने भारत को 4 रोजा मार्का में शिकस्त पाश दी, उसके बाद सारी दुनिया में अब फील्ड मार्शल का नाम जो है वो चमका है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया में जाकर इस हवाले से बेहतरीन सिफारत की। इस तरह हमने जंग भी जीती और शानदार सिफारतकारी भी की। उन्होंने कहा कि हम कौमी जो इत्तेहाद और यंगानगत है उसको फरोग देना चाहते हैं। उन्होंने जो 2 वाकयात कल हुए, वाना में जो कैडेट कॉलेज पर हमला था और जो इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होने वाला हमला था, उस हवाले से भी उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि इन तमाम के सिरे जो है वो हमारे बदकिस्मती है कि हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ और भारत के साथ जाके मिलते हैं। तो उन्होंने उनको एक बार फिर तालिबान से और उनकी अबूरी हुकूमत से ये अपील की कि वो आकर बैठे और इस मामले को हल करें। बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, उन्होंने कहा उसके सबूत हमने दुनिया को दिए हैं कि उन दहशतगर्दों का राब्ता अफगानिस्तान और भारत से था और हम सबको इनको पैगाम देना चाहते हैं दुश्मनाने पाकिस्तान को कि आपकी तमाम हरकतों का हमें इल्म है। आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया और अब भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वज़ीर आज़म ने कहा कि दोहा और तुर्किया में अमन मुज़ाकरात हुए और हमारी एक ही शर्त थी कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। आए रोज हमारे जवान और अफसरान जो है वो शहादत का जाम नोश करते हैं, इससे बड़ी और कोई कुर्बानी हो नहीं सकती। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अमन कोशिशों में शामिल हो। जी अच्छा कामरान, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में बहुत से पैगामात भी दिए हैं और जैसे कि मैंने आपसे गुफ्तगू करते हुए भी ये जिक्र किया कि अफ़गान तालिबान रजीम को एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत भी दी उन्होंने। इससे हम ये पैगाम ले सकते हैं कि एक मरतबा फिर से इस मामले पर बातचीत शुरू हो चुकी है कि एक नया मुज़ाकरात का दौर शुरू होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ये मुज़ाकरात के 3 दौर जो कि इस्तांबुल और उससे पहले दोहा में हुए वो इनकन्क्लूसिव रहे, कोई नतीजा खेज नहीं हुए थे और टास्क जो हैं वो वहाँ पर तातुल का शिकार हो गई थी एक डेडलॉक की वजह से, क्योंकि अफगानिस्तान की जानिब से जो है वो उस पर मस्बत पेशरफ्त जो है वो सामने नहीं आ सकी थी और पाकिस्तानी वफ़द जो है फिर वो वापस आ गया था। तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने असम्बली के फ्लोर से एक बार फिर ये कहा है कि आज फिर हम उन्हें दावत देते हैं कि आइए हम मिलकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जिन अफगान बहन भाइयों को मेहमान बनाकर रखा, 40 साल की मेहमान नवाजी का वो जो सिला दे रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान ने इनको इंसानियत के जज्बे के तहत, भाईचारे के जज्बे के तहत इनकी मेजबानी की थी, लेकिन इसका जो सिला मिल रहा है वो इस वक्त सारी दुनिया के सामने है। ये नई दिल्ली चले गए, ये देवबंद चले गए, ये सब पैगामात हैं जो हमें समझ में आते हैं। उन्होंने कहा कि हम फिर भी दावत देते हैं कि आइए हम मिलकर बैठते हैं और इस खित्ते के लिए और इस खित्ते के लिए अमन और अमान को जो है वो एक मौका जो है वो और मिलना चाहिए। मैं बताता चलूं कि दोहा और इस्तांबुल में कोई 3 से 4 दौर जो है वो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के हुए थे, जिसमें पाकिस्तान का सिर्फ यही मुतालबा था कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी का नोटिस ले और जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी में उसका सद्देबाब करे, उसको रोके। सिर्फ यही मुतालबात थे, लेकिन इसके ऊपर जो मस्बत जवाब जो है वो नहीं आ सका था अफगान। उसकी वजह यही थी कि अफगानिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो इस वक्त ताल्लुकदारी जो है वो शुरू हो चुकी थी और जिस वक्त पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म ने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की जा रही थी अफगानिस्तान की जानिब से और मुज़ाकरात की बात हो रही थी, तो उस वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो
नई दिल्ली गए हुए थे और वहां पर मुलाकातें कर रहे थे। तो उन्होंने इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये जो वफाकी आईनी अदालत का क़याम है, ये मिसाक जमहूरियत में वाज़ेह लिखा था कि हम आईनी अदालत बनाएंगे, और आज 19 साल बाद ये ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर हुआ है कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम जो है वो मुमकिन हो सका है इस आईनी तरमीम के जरिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को आईनी अदालत क्यों तकलीफ दे रही है समझ नहीं आता, इख्तिलाफ राय सबका हक है मगर गालम गलोच जो है वो दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि भारत को 4 रोजा मार्का में हमने शिकस्त फाश दी, वो 10 मई का हवाला दे रहे थे। इसके बाद सारी दुनिया में फील्ड मार्शल का नाम चौंका। उन्होंने कहा कि जी हमारे इस हाउस ने, इस हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया, और इसलिए कि हम अपनी हीरोज की इज्जत अफजाई करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने भी दुनिया में जाकर बेहतरीन सफारत की, इसी हवाले से हमने जंग भी जीती और शानदार सफारतकारी भी की। हम कौमी इत्तेहाद का फरोग चाहते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से बात की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का वो शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस एक नेक नाम जस्टिस हैं और अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं, और उन्होंने बताया कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो रहेंगे और वही जुडिशल कमीशन की सरबराही भी करेंगे, लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सरबराह भी वही होंगे और सुप्रीम जुडिशल के चेयरमैन भी वही होंगे। चूंकि आज जो ज़मीनी तरामीम हुई हैं उसमें इस हवाले से जो है वो तरामीम सामने आई हैं। इससे पहले ये टाइटल जो है वो ले लिया गया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है उसको सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करार दिया गया था, जो सेनेट से तरामीम मंजूर हुई थी। लेकिन अब ये वाली जो तरमीम है इसको रिवर्स किया गया है, और अब ये कहा गया है कि जब भी जिस मौके पे भी दोनों चीफ जस्टिस साहिबान यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इन दोनों चीफ जस्टिस में से जो भी सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल जो है वो उसको मिलेगा। तो इस वक्त चूंकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो सीनियर हैं, इसलिए ये टाइटल उन्हीं के पास होगा, और जो जितने भी जुडिशल फोरम्स हैं उनकी सरबराही भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे करते रहेंगे। अच्छा शहरियार, कामरान मैं आपकी जानिब दोबारा आऊँगी। शहरियार, 224 अरकान दरकार थे आज की तरमीम को पास कराने के लिए, लेकिन 234 अरकान ने हिमायत में वोट दिए, 4 ने मुखालफत में। इसको हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है क्योंकि अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज भी किया था, मुखालिफत भी की। बिल्कुल, देखिए इसकी 2/3 अक्सरियत जो है वो 224 वोट दरकार थे, लेकिन 233 वोट जो हैं वो मिले, 234 वोट जो हैं वो मिले हैं। तो और ये बआसानी जो है वो कर लिए गए हैं, इसमें किसी अपोजिशन का वोट लेने की ज़रूरत जो है वो भी महसूस नहीं की गई, क्योंकि ये फिगर्स जो हैं वो पहले ही आ रहे थे पार्टी पोजीशन के मुताबिक कि जब से ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इनका फैसला हुआ है, और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हुकूमत और उनके इत्तेहादी जमातों को मिली हैं, उसके बाद से इनकी पार्टी पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत हो गई थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला किया था, उसके बाद जो पार्टी पोजीशन आ रही थी उसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ ये अपनी इत्तेहादी जमातें ही मिल जाएं तो ये 2/3 अक्सरियत जो है वो बना लेती हैं, यानी हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को पहले से ही 2/3 अक्सरियत हासिल थी। इसलिए इसका आज इसका जो है वो सबूत भी सामने आ गया कि 224 जहां वोट दरकार थे वहां पर 234 वोट लेकर हुकूमत ने अपनी 2/3 अक्सरियत भी साबित की है, और इस जो 27वीं आईनी तरमीम का पैकेज है इसको भी मंजूर किया है। तो और इसमें हुकूमत के साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर थी, वो उसने उसका साथ दिया, जिसके ऊपर आज वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो का शुक्रिया भी मैं बुला। ठीक है, कामरान खान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। शहरियार खान कौमी असेंबली के अंदर की सूरत हाल से भी आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।